Hello, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so first of all, I welcome all of you in this lecture. So, good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Yes, what about Ritik, Khushbu, and Swati? Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Okay, so let me present my screen to you. Yes, please let me know. Can you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Now, as you all know that we have already, or you can say I have already given you an idea of what do we mean by dual of a graph. Okay. So let us formally state or let us formally see what is the definition of a dual of a graph. Okay, so this I am going to take it from this PDF which is nothing but Bondi Murthy. Okay, this you will find in the topic called as planar graph, second topic which is nothing but dual graphs. So let us recall it. What do we mean by faces and what do we mean by exterior face? So plane graph G partitions the rest of the plane into a number of connected regions. The closure of these regions are called the faces of G. Okay, this we have already seen. What do we mean by faces of graph G? Then show a plane graph with these six faces. The notion of a face applies also to embeddings of graphs on other surface. Now, what do we mean by embedding? Embedding means we can put one set into the another set. Okay, that is equivalent to say we can embed one set into another one. So we shall denote fg and pi g respectively the set of faces and the number of faces. Okay, so what do we mean by set of faces? Set of faces is denoted by fg and the total number of faces in the plane graph is denoted by pi g. See, sometimes it is also called as phi. Okay, because the spelling of this is what? Phi. Sometimes it is called as phi or sometimes it is called as phi. Okay, and we have also seen that each plane graph has exactly one unbounded face called the exterior face. Okay, this we have already seen. Now let me directly jump on the definition of a dual graph, or you can say the construction of a dual graph. Now all of you please try to understand this definition carefully because this is a very important definition or you will find at least one or two questions based on this in your exam. So given a plane graph, okay, plane graph means planar graph. Given a plane graph G, one can define another graph called notation is G star. Okay, where this G star is nothing but the notation of a dual graph. So one can define another graph G star as follows. Okay, अब हम ये G star कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखो. Corresponding to each face f of G, okay, corresponding to each face f of G means आपके पास जो भी ओरिजिनल ग्राफ होगा G उसमें आपको पहले फेसेस काउंट करना है कितने फेसेस है. So corresponding to each face f of G, there is a vertex f star of G star. ओके ये मैंने आपको ऑलरेडी इन माय प्रीवियस लेक्चर बताया था. हम फेसेस को एज अ वर्टेक्स कंसिडर करेंगे इन ड्यूअल ग्राफ एंड वी आर कॉलिंग दिस वर्टेक्स बाय एफ स्टार. सो देयर इज अ वर्टेक्स एफ स्टार ऑफ जी स्टार
and the corresponding to each age E of G, there is an age E star of G star. ओके, मीन्स जी में अगर एक एज ई होगी तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एज कंसिडर करेंगे ई स्टार इन द ग्राफ जी स्टार. Now two vertices F star and G star are joined by the edge E star in G. Now remember, this is a very important condition. How we are going to join these two vertices in G star? Okay, so two vertices F star and G star are joined by an edge E star in graph G star. If and only if, now you can see this is an if and only if condition. If and only if their corresponding faces F and G are separated by the edge E in G. Means what? हम पहले ग्राफ G देखेंगे, उसके नंबर ऑफ फेसेस काउंट करेंगे. मान लो उसमें दो फेसेस होंगे F एंड G, और अगर वो एक एज से सेपरेट हो रहा है तो हम F स्टार एंड G स्टार ज्वाइन करेंगे बाय एन एज E स्टार इन G स्टार. Okay. Now this graph G star is called the dual of G. A plane graph and its dual are shown in figure 9.7a and 9.7b. Okay, now you observe these two graphs. Can you able to see these two graphs? Yes. Is it visible to you? Yes, sir. Okay. Now you can see this left hand side graph is nothing but our graph G. Now count how many faces are there in this graph G. 5. 5 faces. Okay. So according to this definition, how many vertices are there in G star? 5. 5. Okay. जितने नंबर ऑफ फेसेस ग्राफ G में होंगे उतने नंबर ऑफ वर्टाइसेस ग्राफ G स्टार में होंगे. तो हम वो पहले वर्टाइसेस लिस्ट करते हैं. दैट इज दिस इज माय F1 स्टार. ओके, और G स्टार हम ग्राफ बना रहे हैं तो हम सारे वर्टाइसेस को स्टार से डिनोट करेंगे. सो दिस इज माय फर्स्ट वर्टेक्स F1 स्टार. दिस इज माय सेकंड वर्टेक्स F2 स्टार. This is my third vertex F3 star. This is fourth F4 star, and this is F5 star. So these are my 5 vertices in my dual graph G star. Okay. Now remember how we are going to join these edges. Okay. According to this condition, you can see two vertices F star and G star are joined by the edge E star in G star if and only if their corresponding faces F and G are separated by the edge E in G. Means what? Now you see, here I am having a face F1 and here I am having a face F2. Okay. Now observe, F1 and F2 sharing an edge common, which is nothing but E1. Okay. You can see these two faces sharing this edge, which is nothing but E1. Or you can say these two faces are separated by this edge E1. So we are going to take E1 star in G star such that F1 star and F2 star are joined by this edge E1 star. So you can see here I am having E1 star. मीन्स वॉट भी एजेस अगर शेयर हो रहे होंगे हम उतने सारे एजेस ड्रॉ करेंगे इन जी स्टार. खाली
उनका नोटेशन अलग होगा। इसमें हम E1 से डिनोट कर रहे हैं तो ड्यूअल में हम E स्टार से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो F1 एंड F2 ये दो फेस है इन ग्राफ G, और वो उन दोनों के बीच में सी वी आर हैविंग मेनी एजेस। पहले हम E1 के बारे में बात करते हैं। सो E1 क्या है? F1 एंड F2 को सेपरेट कर रही है, तो हम इस एज की करस्पॉन्डिंग एज लेंगे E1 स्टार। ओके, E1 स्टार लेने के बाद F1 और F2 E1 से सेपरेट हो रहे हैं, तो हम वो एज ज्वाइन करेंगे इन बिटवीन F1 स्टार एंड F2 स्टार इन G स्टार, और उसे हम बोलेंगे E1 स्टार। क्लियर? यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो F1 एंड F2 ये दो फेसेस है इन G। अब ये दोनों E2 भी शेयर कर रहे हैं, राइट? एज E2 भी शेयर कर रहे हैं, इज इट? Yes, sir. सो अब हमें E2 के करस्पॉन्डिंग एज लेनी पड़ेगी विच इज नथिंग बट E2 स्टार। ओके, और ये हम ज्वाइन करेंगे बिटवीन F1 स्टार एंड F2 स्टार इन G स्टार। सो यू कैन सी हमने यहाँ पर भी ये एज ड्रॉ कर दी और इसे नाम दिया E2 स्टार। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ देखो F1 और F2 के बीच में और कोई एज कॉमन है? नहीं। तो ये दोनों एजेस का काम हो गया। ओके, अब आप F1 फेज देखो। ओके, F1 में ये एक एज है E8। ओके, नाउ दिस इज विच टाइप ऑफ एज? वो क्या होगा अगर मैं इस एज को रिमूव कर दूंगा? यस? तो आप इस ग्राफ के बारे में क्या बताओगे? अगर मैंने ये एज E8 रिमूव कर दी, देन कैन आई से दिस इज कनेक्टेड? नो सर, डिस्कनेक्टेड। नो, डिसकनेक्टेड। तो ये एज कैसी एज है? कट एज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एज? कट एज। Cottage. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारे ग्राफ जी में कट एज होगी तो ग्राफ जी स्टार में वो लूप फॉर्म करेगी, और अगर ग्राफ जी में अगर लूप होगा तो ग्राफ जी स्टार में वो कट एज फॉर्म करेगी। क्लियर? तो इस एज के करस्पॉन्डिंग हम एज लेंगे E8 स्टार। ओके, एंड एज दिस इज द कट एज इन G, सो इट फॉर्म्स अ लूप इन G स्टार, और उस लूप का नाम होगा E8 स्टार। क्लियर? यस सर। सो प्लीज रिमेंबर। ओके, अब हम F2 और F3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम F1 और F3 के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ देखो F2 एंड F3 कोई एज शेयर कर रही है इन G। यस सर। क्या नाम है उस एज का? E3. E3। तो E3 के करस्पॉन्डिंग हम एज लेंगे E3 स्टार। ओके, और इसे हम ज्वाइन करेंगे इन ग्राफ G स्टार इन दिस वे। F2 स्टार F3 स्टार से ज्वाइन होगा विथ एज E3 स्टार। क्लियर? यस सर। Yes. और कोई एज है इन बिटवीन F2 एंड F3 फेस इन G? नो सर। नो।
तो F2 और F3 का भी काम हो गया. अब हम F1 और F3 के बारे में बात करते हैं. ओके, observe, do we have any age sharing in between F1 and F3? E4. E4. तो E4 के करस्पॉन्डिंग एज लेंगे हम E4 स्टार और ज्वाइन करेंगे F1 स्टार विथ F3 स्टार बाय दिस एज E4 स्टार. सो ये हमने ज्वाइन कर दिया दिस टू बाय एन एज E4 स्टार. क्लियर? Yes, sir. ओके. और कोई एज है बिटवीन F1 एंड F3 फेस इन G? No, sir. नो. सो F1 एंड F3 का भी काम हो गया खत्म. अब हम देखते हैं F3 एंड F4. सो F3 एंड F4 कौन सी एज शेयर कर रहे हैं? E5. E5. सो E5 के करस्पॉन्डिंग लेंगे E5 स्टार और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे बाय दिस एज E5 स्टार इन G स्टार. ओके, तो ये हमने ज्वाइन कर दी. अब और कोई एज शेयर कर रहे हैं बिटवीन F3 एंड F4? No, sir. नो. तो ये भी हुआ खत्म. Now observe, do we have any age sharing in between F1 and F4? Yes. है कोई एज कॉमन इन बिटवीन F1 एंड F4 इन G? No, sir. नो. तो हम F1 स्टार और F4 स्टार को ज्वाइन नहीं करने वाले. सिमिलरली F2 स्टार एंड F4 स्टार के F2 स्टार एंड F4 स्टार को भी ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग एनी एज कॉमन. Okay, now let us talk about F4 and F5. Now, is there any age common in between F4 face and F5 face in G? E6. E6. So E6 से corresponding age कौन सी लेंगे? E6 स्टार और इन दोनों वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे बाय दिस एज E6 स्टार. क्लियर? Yes, sir. अब और कोई एज नहीं बची तो इन दोनों का भी काम खत्म हुआ. अब हम बात करेंगे F5 एंड F2. देखो F5 एंड F2 कोई एज कॉमन शेयर कर रही है? E9. E9. सो E9 के करस्पॉन्डिंग एज लेंगे E9 स्टार और इन दोनों वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे. ओके, अब और कोई एज नहीं है तो इन दोनों का भी काम हो गया खत्म. अब हम चेक करेंगे F1 विथ F5. है कोई एज कॉमन इन बिटवीन F1 एंड F5 इन G? E7. E7. सो इसके करस्पॉन्डिंग एज लेंगे E7 स्टार और उन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे. अब देखो सारे एजेस हमने ड्रॉ कर लिए. So in this way we are going to get this graph G star, and this G star is known as the dual of G. Clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now here is a homework for you. You consider this is your graph G. Okay. You consider this is your graph G और इससे आप बनाओगे G star. ओके, मीन्स आपको G स्टार कंसिडर करना है और इसका फिर से आपको ड्यूअल लेना है. मीन्स आप ये राइट हैंड वाला ग्राफ कंसिडर करोगे और इसका फिर से ड्यूअल ग्राफ बनाओगे. तो आप इसमें चेक करोगे कितने रीजन्स है
उन रीजन के करस्पॉन्डिंग आप, और यू कैन से फेसेस चेक करोगे कितने फेसेस है, उन फेसेस के करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस कंसीडर करोगे, और उससे आपको एक न्यू ग्राफ मिलेगा जी डबल स्टार. And you can check that if you find the dual of dual graph, then you will get this dual of dual graph is isomorphic to G. Okay, means what? अगर आपके पास ड्यूअल ग्राफ है और अगर आप उस ड्यूअल ग्राफ का फिर से ड्यूअल लेते हो तो आपको ओरिजिनल ग्राफ ही मिलेगा. Okay, this is the remark. I want you to check this remark. Okay, in fact this is a theorem, we will prove it little later, but this is the homework for you. Is the homework clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, now the next question is, observe, can I say this graph G is planar graph? Yes. Can I say Yes, this sir. graph G is planar? Yes, because there is no crossing between the edges of G. So here our graph G is planar graph. What you are going to say about this dual graph? Is it planar? Yes, sir. Yes. Okay, so always remember, प्लेनर ग्राफ का जो भी ड्यूअल ग्राफ बनेगा वो भी प्लेनर ही मिलेगा. और उसकी प्लेन ड्राइंग हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. ओके, हम क्या करेंगे, F1 को वर्टेक्स कंसीडर करेंगे, F2 को वर्टेक्स कंसीडर करेंगे, F3 को वर्टेक्स कंसीडर करेंगे, F4 को वर्टेक्स कंसीडर करना है, एंड F5 को वर्टेक्स कंसीडर करना है. ओके, see, this kind of work takes a little bit time. Okay, इससे अच्छा क्या हो, आप ये ग्राफ जो है जी वो आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेना. ओके, पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद इसमें जितने भी फेसेस होंगे उनके वर्टाइसेस को आप पेन से ड्रॉ करना. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से ड्रॉ किया है. अब हमें ये ज्वाइन करना है. सो यू कैन सी F1 एंड F2 शेयरिंग एन एज इवन कॉमन, सो ये दोनों हम ज्वाइन करेंगे. सिमिलरली F2 एंड F3 शेयरिंग अ फेस कॉमन, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. अब E8 कट एज है तो ये बन जाएगा लूप. ओके, अब F5 एंड F1 एक एज शेयर कॉमन कर रहे हैं, एक एज कॉमन शेयर कर रहे हैं विच इज नथिंग बट E7, तो ये जाके यहां से ऐसे ज्वाइन होगा. F4 with F5, F4 with F3, then F3 with F1, F2 with F1, then देखो कोई बच गया. यस, F5 एंड F2 बच गया, तो इसे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. ओके, एंड यू कैन सी this red color graph is isomorphic to this dual graph, और ये देगा हमें प्लेन ड्राइंग ऑफ द ड्यूअल ग्राफ. ओके, सो कौन सा इजी है दोनों में? सेकंड वाला. सेकेंड वाला. क्यों? क्योंकि इसमें हमें देखते ही पता चल रहा है अगर दोनों एक एज शेयर कॉमन करेंगे तो हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे बाय एन एज, और हमें ये रिजल्ट भी पता है कि अगर कट एज होगी तो वो लूप फॉर्म करेगी इन ड्यूअल ग्राफ. ओके, वही ग्राफ इन्होंने इस तरीके से ड्रॉ किया है. यू कैन सी ये जो वर्टाइसेस थे ये इन्होंने मार्क कर लिए. ओके, और ये दोनों एक एज शेयर कॉमन कर रहे तो इन्होंने ये ज्वाइन कर दिया जैसे हमने किया.
ओके खाली उन्होंने एज इस तरीके से घुमाई, हमने इस तरीके से घुमाया, डजेंट मैटर। ओके बाद में आपने ये जो पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ किया होगा इसे आप जस्ट रबर से इरेज कर देना, तो आपको मिल जाएगा द प्लेन ड्राइंग ऑफ द गिवन ग्राफ विच इज नथिंग बट द ड्यूअल ग्राफ। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. So you can see this is a simple topic. Now it is easy to see that the dual graph G star of the plane graph G is planar. Okay, ये अभी हमने चेक किया. In fact, there is a natural way to embed G star in the plane. Okay, now what do we mean by embed? Embed means जिसे भी हमें embed करना है उसे हम put करेंगे. सेट्स इन सेट्स ना सर? Sorry. एम्बेड का मतलब बताया था ना आपने अभी पिछले वाली डेफिनेशन में. Yes. सी एम्बेड का मतलब क्या, हमारे पास अगर दो ग्राफ है G एंड H, और अगर मैं बोल रहा हूं कि हम G को एम्बेड कर सकते हैं इन H मीन्स व्हाट, हम G को H में पुट करेंगे. ओके सच दैट, और यू कैन से हमें H में एक ऐसा सब ग्राफ मिलेगा जो G के आइसोमॉर्फिक होगा. तो इन शॉर्ट आप याद रखो, जैसे हमारे पास 2 बकेट्स रहता है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो अगर घर में जगह नहीं रहा तो हम वो छोटा वाला बड़े वाले में डालते हैं. दिस इज नथिंग बट द एम्बेडिंग ऑफ स्मॉल बकेट इनसाइड द बिगर बकेट. क्लियर? यस सर. Okay. Now we place each vertex f star in the corresponding face f of G and then draw each edge E star in such a way that it crosses the corresponding edge E of G exactly once. जैसे हमने यहाँ पे ये ग्राफ जो बनाया, ओके ये रेड वाला ग्राफ, अगर ये शेयर कॉमन कर रहा है तो हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे बाय क्रॉसिंग दिस एज E1, और इस रेड वाले एज को हम नाम देंगे E1 स्टार. ओके इन दिस वे. Okay, this procedure is illustrated in figure 9.7c, which is nothing but this figure, where it is indicated by heavy points and heavy lines. You can see dark points and dark lines आपको show हो रहा है. This is nothing but that procedure. And it is intuitively clear that we can always draw the dual as a plane graph in this way. But we shall not prove this fact. Okay, and here you need to note down something, that is note, if E is a loop in G, then E star is a cut edge in G star and vice versa. Okay, तो अगर E अगर लूप होगा इन G तो E स्टार क्या बनेगा, कट एज, और अगर E कट एज होगा इन G तो E स्टार बनेगा लूप इन G स्टार. This we have already seen. Is that clear? यस सर. Now, although defined abstractly, it is sometimes convenient to regard the dual G star of the plane graph G as a plane graph. Okay, that is embedded as described above. One can then consider the dual G star star of G star. Okay, ये जो मैंने आपको बताया, अगर आप ड्यूअल ग्राफ का फिर से ड्यूअल लेते हो तो वो आपको आइसोमॉर्फिक मिलेगा to the original graph G. Okay, and it is not difficult to prove that when G is connected. So remember, connectedness is important. So when G is connected, then dual of the dual graph is isomorphic to G. And this you will find in the exercise 9.2.4 in this book. Okay, तो ये रिजल्ट आपको एक्सरसाइज में है, इसे हम प्रूव करेंगे.
I hope the idea is clear. Yes, sir. Okay. Now let me give you an example and you need to tell me how we are going to draw the dual of this graph. Okay, wait, let me draw it again. Okay. Mm, let me name these vertices. And let me name these edges also, so that you can able to tell me. Now observe how many vertices are there in this graph 5, and how 5. many edges? 8, 8 edges. And how many faces? First of all, tell me, is it planar? No, sir. No, sir. No. See, this is planar, but this drawing is not planar. Okay, so we need to draw its plane drawing first. Okay, so इसकी प्लेन ड्राइंग हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो एज है E6, इसे हम बाहर से ड्रॉ करेंगे. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सो इसे हमने ड्रॉ करना है इस तरीके से. Now see, is it planar now? yes, sir. Okay. Now observe how many faces are there in this graph. 5 faces. 5. 5 faces. Okay. अब ये जो फेसेस है उन्हें मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं और यू कैन से ओरिजिनल ग्राफ ब्लैक कलर से ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. दिस इज माय ग्राफ जी. अब हम इसका ड्यूअल फाइंड आउट करेंगे और ड्यूअल मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय रेड कलर. ओके, एंड द नोटेशन फॉर ड्यूअल इज जी स्टार. तो अब ड्यूअल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्रिक क्या फॉलो करेंगे हम? इसके जितने भी फेसेस है उन्हें हम पहले एज अ वर्टेक्स कंसीडर करते हैं यूजिंग रेड कलर. ओके, सो ये जो फर्स्ट फेस होगा, दिस इज F1 स्टार. दिस इज माय सेकेंड फेस. सो मैं इसे साइमल्टेनियसली वर्टेक्स भी मार्क करते जा रहा हूँ बिकॉज हम ड्यूअल ग्राफ फाइंड आउट कर रहे हैं. सो दिस इज F2 स्टार. दिस इज F3 स्टार. This is F4 star. And this is F5 star. Clear to everyone? Yes, sir. So इसमें 5 फेसेस थे तो हमने ईच फेस के करस्पॉन्डिंग एक वर्टेक्स लिया और उसे हमने नाम दिया
जितने भी फेसेस थे उनके ऊपर हमने स्टार लगा दिया और वो नाम बन जाएगा इन वर्टेक्स का, इन ग्राफ जी स्टार। ओके, अब एजेस में ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, और चाहो तो आप रेड कलर से भी कर सकते हो, हम सेम ही कलर यूज करते हैं सो दैट कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको खाली क्वेश्चन पूछूंगा और आपको मुझे बताना है कि इन दोनों वर्टेक्स को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ओके, कैन आई ज्वाइन F1 स्टार विथ F3 स्टार? Yes, sir. यस। और इस एज को नाम क्या देंगे? E2 star. E2 स्टार। ओके, मैं एजेस को नाम देने के लिए डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हम नामकरण करेंगे। ओके ओके, नाउ ऑब्जर्व, कैन आई जॉइन F1 स्टार विथ F2 स्टार? Yes, sir. कैसे कैसे ज्वाइन करेंगे, E7 से या E1 से? E1, पहले तो हम E1 से ड्रॉ करते हैं। ओके, E7 से भी करना पड़ेगा सर। E7 से भी करना पड़ेगा। ओके, सो E7 से भी हमने कर दिया। क्लियर? Yes, sir. अब बताओ, F3 स्टार और F4 स्टार ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे। F2 स्टार एंड F4 स्टार? होंगे सर। यस। व्हाट अबाउट F3 स्टार एंड F5 स्टार? होंगे सर ज्वाइन। यस। F4 स्टार एंड F5 स्टार? ये भी होंगे सर। सो इसे भी हमने ज्वाइन कर दिया। व्हाट अबाउट F2 स्टार एंड F5 स्टार? नहीं होंगे सर। नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई भी एज कॉमन शेयर नहीं करने वाले। व्हाट अबाउट F1 स्टार एंड F5 स्टार? होंगे सर। सो इसे भी हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, हो गए सारे वर्टाइसेस ज्वाइन या कोई बच गया? चेक कर लो एक बार। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने जिस एज से वो लाइन पास की है उसको खाली स्टार लगा के उस एज का नामकरण कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, F1 स्टार एंड F3 स्टार एज E2 से पास हो रही है तो इसे हम नाम देंगे E2 स्टार। ओके, अब यहाँ पे देखो, F1 स्टार एंड F2 स्टार E1 से पास हो रही है फर्स्ट, सो इसे हम नाम देंगे E1 स्टार और इसे हम नाम देंगे E7 स्टार। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कर लोगे? नामकरण कर लेंगे सर। ओके, सो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी स्टार, और फिर बाद में आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है इसे रिमूव कर देना है। ओके, नामकरण करने के बाद, क्योंकि पहले मत करना, फिर आपको नहीं पता चलेगा उसका नाम क्या होगा। ओके, ब्लैक वाला जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है वो पूरा आपको रिमूव करना है फॉर गेटिंग द ड्यूअल ग्राफ ऑफ द गिवन ग्राफ जी।
ओके, तो ये मेरा बन जाएगा ग्राफ जी स्टार। अब हमें क्या पता है, ये ग्राफ जी स्टार भी प्लेनर ग्राफ है, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब आप इस जी स्टार का फिर से ड्यूअल लो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसमें चेक करोगे कि कितने फेसेस है। कितने फेसेस है इस ग्राफ में? 5. 5 फेसेस। ओके, सो ईच फेस को आप एज अ वर्टेक्स ट्रीट करो। ओके, अब ऊपर जगह नहीं है तो मैं ये नीचे बना देता हूँ। ओके, और आपको इसका फिर से ड्यूअल लेना है। तो ड्यूअल अब मैं ब्लैक कलर से ही कर रहा हूँ, यू कैन सी। ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये एज एंड दिस एज, सिमिलरली दिस एज ऑल्सो। ओके, नाउ दिस एज एंड दिस एज। ओके, और ये वर्टेक्स भी ज्वाइन होंगे बिकॉज ये एज भी कॉमन आ रही है। ओके, तो इसे आप प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करोगे तो हमें जो हमने ग्राफ जी बनाया था, हमें एज इट इज मिला कि नहीं मिला वो चेक करो खाली। मिल गया? यस, यस सर, मिल गया। ऐसे ही Yes. बनाया था। ओके, खाली ये वर्टेक्स प्रॉपर इस वर्टेक्स के लेवल में था, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। ओके, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, बट यू कैन गिव एन एक्सप्लिसिट आइसोमॉर्फिज्म इन बिटवीन दिस टू ग्राफ्स। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है, सी यहाँ पे मैंने ये वर्टेक्स यहाँ पे नीचे लिया, कोई ऊपर भी ले सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली ज्वाइन करेगा। तो आपको वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, बट आप कह सकते हो ये दोनों ग्राफ कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूव करेंगे दिस टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक एंड सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन ड्यूअल ग्राफ। ओके, उसके पहले आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ आपको यहां से यहां तक रीड करना है। ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये पाई क्या डिनोट करता है, दिस पाई रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ फेसेस। ओके, सर टोटल नंबर ऑफ फेसेस। और ये एफ रिप्रेजेंट क्या करेगा, देखो इनके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है इन द स्टार्टिंग। where we have talked about it. Okay, observe here f and g, fg and phi g represents the set of faces and the total number of faces in the plane graph g. So ये पैराग्राफ आपको खुद से रीड करना है, and this is your today's homework, and you need to calculate this thing, that is g double star for this graph. ओके, सो ये खुद से रीड करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सम रिजल्ट्स देखेंगे बेस्ड ऑन ड्यूअल ग्राफ। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू नाउ, इज दैट Yes, sir. okay? So let me stop this lecture here. Now if you have any kind of doubt, then you just unmute yourself and you can ask.